Today we will start, you can say it's first chapter of numerical methods. And in first chapter we find roots of non-linear equation. These equations are very important. You have studied in your high school that roots means, let us say I have one equation fx equals to 0. Then what is x? For example, let us take a linear equation. Linear means ax plus b equals to 0. Then x equals to minus b by a. For example, if you say 2x plus 3 equals to 0, so this is a linear equation. Then x equals to minus 3 by 2. And if you make a plot, you have point minus 3 by 2 somewhere here. Okay. So this is a line, and at point minus 3 by 2, if you fit here, or you can say this function, when you fit x equals to minus 3 by 2, this becomes 0. And that's why we also say root or synonymous is 0. So either find roots of equations or find their zeros. So both are the similar term. So you know how to solve linear equation. Now we come to non-linear equations. Non-linear equations. And some of the nonlinear equation in the form of polynomial you can solve, like quadratic. We have studied in previous topic. Let us say you have a quadratic x square plus 2x plus 3 equals to 0. Then you have two roots, x equals to minus b plus minus b square 4 minus 4 ac. A is 1. Okay. So this equation has two roots, and in this example, roots are complex. And let us say if you have something like that, x5 minus x square or x cube plus 3x square plus 1 equals to 0. Can you find x? Difficult. We don't know. In some cases, you can find, you can solve quadratic, you can solve third degree equation, x cube, कार्डन मेथड है दैट यू कैन अप्लाई. फोर्थ भी कुछ सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, फोर्थ डिग्री तक यू कैन सॉल्व. बट वी डोंट हैव एनी जनरल रूल सो दैट यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन. तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इनको हम अलजेब्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं, अलजेब्राइक. ओके, सो ऑल दीज आर नॉन लीनियर. नॉन लीनियर मीन्स जो लीनियर नहीं है ना, लीनियर तो सिर्फ ये है ए एक्स प्लस बी. All other are non-linear, and they may involve trigonometric function as well. Like for example, you have this one. Then what is x? X plus exponential minus x. X equals to tan of x. Or you can say x minus tan x equals to 0. Then what is x? Okay, so all these equations are non-linear equations. And in this topic, we try to explore numerical method to solve, to find roots of these kind of non-linear equations. Okay, और इनको जो फर्स्ट टू हैं एक्स के, जो एक्स की पावर्स हैं, इनको हम बोलते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन, और इनको जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम बोलते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन. बट डोंट वरी, सो broad categories, they all are non-linear equations. So before going further, first uh, I have written that this is a root. Let's let's show graphically. मान लो ये फंक्शन है आपका. So you have a function. So the value of x
यानी कि जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं रूट. Okay, so we usually denote the root with R or alpha. Okay, अब जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा, जैसे लाइन थी, लाइन क्रॉस किया तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे रूट. और रूट भी दो टाइप के होते हैं. फर्स्टली एक रूट को हम बोलते हैं सिंपल रूट. सिंपल रूट का मीनिंग है, let us say I have equation x minus 1 equals to 0. Then what is root? 1. Let us say I have this equation x minus 1, x minus 2 equals to 0. So what are roots? 1 and 2. 1 and 2. Okay, so equation is given in factored form. We know the factors. Okay, so x minus 1, but if you multiply these two, or I can write this function as xk. So this will be minus 2x minus x minus 3x plus 2. So if I look equation in factored form, then I can write the root directly. Okay, दोनों सेम ही है ना. If you look at x minus 1, x minus 2, you can say directly x equal to 1 and x equal to 2, they are roots. But if you see this one, then you cannot say directly, but if you factor it, then you can say roots are 1 and 2. So a root occurring one time. अब simple root का meaning क्या है? Root occurring only one time. So both x equal to, in both cases, first में one root है, second में 1 and 2. So these are simple, these called simple roots. Okay? Simple मतलब जो एक बार ही आए. और एक होते हैं multiple. Let's look again on these equations. Second kind of roots are, they are called multiple roots. अब मल्टीपल का मीनिंग है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था x minus 1 square equals to 0. So what are the roots in that case? 1 1 plus this one. 1. x minus 1 x minus 1. So 1 occurring two times. Okay, so multiple का मीनिंग है root occurring more than once. More than once. Let us say, मान लो ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है, then again you can say x equal to 1 1. 1 1 भी रूट है, 2 टाइम्स आ रहा है, और you can say, और साइन जो 1 है that is not equals to 0. तो जो अक्रिंग होती है, जो अक्रिंग, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी. व्हाट्स वी से मल्टीप्लिसिटी. Multiplicity means how many time a root is occurring. तो यहाँ पे सेकंड केस में क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी दोनों में वो m से लिखेंगे 2 है. ओके, तो एक रूट एक बार आए सिंपल, और मोर देन वंस 2 3 4, मान लो आपके पास ये इक्वेशन है, लेट्स से x minus 1 क्यूब इक्वल्स टू 0. रूट्स क्या होंगे? 1 1 1 3 times. So we say multiplicity is 3. अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है x minus 1 क्यूब, but if you write in expanded form a cube minus b cube, then x cube minus x square plus x minus 1, यही होता है ना इसका, a minus b cube लिखा मैंने. So if you look at this form, you can say so root occurring 3 times, and root is 1 1. But if you look at expanded form,
then directly you don't know. Okay, but then you can do some manipulation to write the root. So in this topic, we will find root of equation. Firstly, we start with simple roots. Okay, and then we will move to, at the end of the chapter, we will try to develop a method to find multiple roots. ठीक है, और एक important observation है, that is based on that you how you look at equations. ये important observation है कि अगर आपका root if fx equals to 0 has a root r with multiplicity m, मतलब m time अक्कर होगा, then we can write. अब देखो, आपने फर्स्ट एग्जांपल 1 रूट 2 टाइम्स आ रहा है तो फैक्टर क्या था, x माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, 1 अकरिंग 3 टाइम्स, सो व्हाट यू हैव x माइनस 1 क्यूब. तो अब मेरा रूट r है, m टाइम आ रहा है, तो उसमें ये फैक्टर जरूर होगा. साथ में कुछ और भी हो सकता है बचा फंक्शन, जैसे सेकंड एग्जांपल था x माइनस 1 स्क्वायर साइन x, या मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मान लो ये आ गया, इसकी जरूरत भी नहीं, चलो x माइनस 1 स्क्वायर ई पावर x. रूट फिर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. तो साथ में एक फंक्शन फाई एक्स हो सकता है, और इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये रूट पे 0 नहीं बनेगा. देखो, जब रूट है तो उसमें ये फैक्टर होगा. जैसे मैंने ये कहा था कि ये फंक्शन था x माइनस 1 क्यूब, ये एक्सपेंशन तो आपको पता है, यू कैन राइट इट. बट ये अगर x माइनस 1 पावर 5 होता, बट डायरेक्टली तो आपको नहीं दिखेगा ना. मान लो आपका रूट 2.5 है, तो ये फैक्टर ये 3 बार आ रहा है, बट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म से तो पता लगेगा नहीं आपकी रूट है. बट अगर हाँ, जो भी रूट है अगर वो मोर देन वंस आ रहा है तो उसमें ये फैक्टर, और अगर 1 टाइम आ रहा है तो ये फैक्टर होगा. अगर 1 टाइम आ रहा है तो उसमें ये फैक्टर होगा x माइनस आर. अगर 2 बार आ रहा है तो x माइनस आर स्क्वायर होगा. 3 बार आ रहा है तो उसमें 3 होगा. सो दैट इफ यू फिट दिस इक्वल्स टू 0, देन यू गॉट x इक्वल्स टू r r r, हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स, times. M times. m टाइम्स r r. ओके, सर एफ ऑफ एक्स क्या चीज डिनोट कर रहा है, फाइव ऑफ एक्स जो है क्या चीज डिनोट कर रहा है. भाई जैसे ये इस पे जाओ, x माइनस 1 स्क्वायर e पावर x, ये fx हो गया. ठीक है, दिस इज fx. ठीक है सर. और x माइनस r r1 हो गया, m2 हो गया, जो e पावर x है दैट इज 5x. ठीक है सर. साथ में कोई फंक्शन हो बचा, जो हो जो जो मतलब रूट में नहीं आ रहा, दूसरा फंक्शन कोई साथ में हो, 5x कैन बी. ओके सर. ठीक है, अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ 2. ठीक है, आप ऑब्जर्व करके मेरे को ग्राफ बताओ कि क्या क्या हो रहा है. लेट्स तो इनवाइट कर रहा है. एक कोई फंक्शन है मेरे पास ऐसा, x दिस इज y, और ये उसका ग्राफ है फंक्शन का. तो रूट कौन कौन से हैं, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. ये रूट है, जहाँ पे वो x एक्सिस पे कट कर रहा है. ये रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट एंड सो ऑन, है ना, सारे रूट हैं ये. अब फर्स्ट रूट को ऑब्जर्व करो, लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन क्या होगा, फंक्शन ऊपर है ना, पॉजिटिव होगा, Yes. और रूट पे 0 बन जाएगा, ये मतलब फंक्शन 0 बन जाएगा. और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है सारी इधर, है ना. फिर यहाँ पे रूट पे 0 बन गया, उसके ऊपर फिर पॉजिटिव बन गया, फिर ये नेगेटिव हो गया, यहाँ फिर पॉजिटिव बन गया. तो क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने इसको देख के, रूट के आसपास में क्या हो रहा है, साइन Sign चेंज हो गया. change. so f changes sign, either positive to negative or negative to positive.
ठीक है जी। अब फंक्शन वैसे भी रूट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, और जीरो के आसपास में एक साइड नेगेटिव नंबर है, एक साइड पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे रूट है, वहां पे फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा। एक तो ऑब्जर्वेशन ये है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, नाउ लुक एट दिस ग्राफ। अब कोई कोई फंक्शन ऐसा है, एक पॉइंट था, इस पे जंप मार के यहाँ चला गया। अब इसको देख के बताओ रूट है। अब इसमें और फर्स्ट में क्या दिक्कत है दोनों? ये डिसकंटिन्यूस है। हाँ, तो रूट रूट नहीं है ना, रूट रूट तो नो सर। ये पॉइंट है। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन होना में चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। हम्म। होना चाहिए एफ शुड बी कंटिन्यूस। तो अगर कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन साइन चेंज कर रहा है, अब दोनों को क्लब कर देते हैं ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, जैसे फर्स्ट था, और फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है कंटिन्यूटी में, देन यू हैव ए रूट। अब थर्ड एक ग्राफ और ऑब्जर्व करो। अब इसमें क्या है, रूट है, दिस इज द रूट। यस सर। जैसे यस सर। फर्स्ट एक्स माइनस, ठीक है। हम्म। तो एक ब्रांच ऐसे आ रहा है, कैसे, तो रूट तो है, बट फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। पॉसिबल यस सर। ऐसे। तो ये केस हम बाद में स्टडी करेंगे, दैट इज समथिंग एल्स। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन है दैट इफ यू हैव ए कंटिन्यूअस फंक्शन, so in the neighborhood या near root, function changes its sign, साइन चेंज भी करे और फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड है वो इसी दो ऑब्जर्वेशन पे बेस है। नाउ आई एम फॉर्मली राइटिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। इनको हम बोलते हैं इटरेटिव मेथड। सर एक बार पीछे कर देंगे प्लीज। जी सर। सर आपने जो लेफ्ट में ग्राफ बनाया है, जो आप कह रहे थे बाद में देखेंगे, इसमें मतलब कंटिन्यूस तो है ये, मतलब दो अलग अलग। हाँ, आप ये ऑब्जर्व कर लो, कंटिन्यूअस है, रूट है, तो जो मैं कह रहा था ना कि साइन चेंज होता है ना, तो जरूरी नहीं कि साइन, जी सर। इसमें पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो फिर ये मल्टीपल रूट वाला है ये। ओके सर। जैसे आप फर्स्ट पैराबोला का ग्राफ बनाओगे तो वैसे बनता है कुछ ऐसा ही, यस सर। ऊपर ही रहेगा ना। सिंपल ले लो आप, लेट्स टेक x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला होता है y इक्वल टू x स्क्वायर। तो 0 फिट करोगे तो रूट क्या है इसका, 0 0 2 टाइम्स आ रहा है। यस सर। तो मल्टीपल केस में ये ऐसा हो सकता है, तो भी मैंने कहा इसको बाद में डिस्कस, ओके सर। मल्टीपल रूट होगा। सो फर्स्टली वी स्टार्ट इटरेटिव मेथड। इटरेटिव का मीनिंग है कि आप कोई चीज को रिपीट करोगे, एंड वी फर्स्ट स्टार्ट फॉर simple roots, and first method in this category, this method is called bisection method. A method is quite old and very simple method. This method is based on what I said previously. So you have an equation fx equals to 0 जिसका रूट निकालना है, and we have two conditions. Condition क्या है, f is continuous on some interval a b. So let me draw it in graph. So something like that. Okay, so this is my root. So this is the graph of f, and this point is root. I'm talking about some interval a b. Let's take a here and b here. You can observe it again. So at this point function is negative, and on this side function is positive. Okay, so f is a continuous. अब पूरी रियल लाइन की बात नहीं करेंगे, फाइनाइट की बात करेंगे ना. सो इट इज कंटिन्यूस ऑन सम इंटरवल ए बी,
दिस इंटरवल कैन बी बिगर, दिस कैन बी स्मॉल। ओके, तो एक कंडीशन फर्स्ट है कंटिन्यूटी, सेकंड कंडीशन है साइन चेंज करें। जैसे मैंने कहा था रूट होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। सो एफ चेंजेस इट्स साइन इन ए बी। अब इसका मीनिंग ये भी आप लिख सकते हो, उसका मीनिंग क्या होता है, एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, सो दिस इज जस्ट अनदर वे टू से दैट वन वैल्यू इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। उल्टा भी हो सकता है ना, फंक्शन का ग्राफ कैसा भी हो, फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, आपने इधर ए लिया है तो इधर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आपने इस साइड बी लिया है तो इधर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव हो, कंटिन्यूस हो, तो वैसे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि कंटिन्यूस। जैसे मैं ये ग्राफ बनाऊं, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, एक फंक्शन ये है, हमने पहले भी बनाया था ये। अब कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे साइन है, साइन एक्स आप कहते हो, साइन एक्स कंटिन्यूस है, मैक्सिमा +1 होता है, मिनिमा -1 होता है, एंड साइन एक्स टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन टू वैल्यूज +1 एंड -1। यानी कहने का मीनिंग है अगर आप कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे आप कोई भी एक्स लो, कोई भी एक्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई जरूर होगा यहाँ पे कंटिन्यूटी में, कोई भी एक्स लो आप। अगर डिसकंटिन्यूस है, अब देखो आपका ये वाई है, यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एक्स है ही नहीं आपके डोमेन में। ओके, तो जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं दे टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन टू वैल्यू। अब पॉजिटिव, अब फंक्शन, अब ये फंक्शन की वैल्यू है, इधर फंक्शन नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में जीरो तो आता ही है, कंटिन्यूटी में अगर रखोगे तो जीरो आएगा, तो जीरो हमने लोकेट करना है। ओके, इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं, सो देन बाय इंटरमीडिएट, दिस इज जस्ट नेम, इंटरमीडिएट वैल्यू, वैसे ये थ्योरम है मैथ्स में, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम the function fx has at least one root in AB, say R। तो अगर R रूट है तो क्या होगा आपका f of R इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये थ्योरम कहती है कि कंटिन्यूस फंक्शन टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन टू वैल्यू। अब ग्राफ से भी दिख रहा है ना, कंटिन्यूटी है, अब नेगेटिव पॉजिटिव है तो बीच में जीरो जरूर आएगा। अगर डिसकंटिन्यूटी है फिर वी आर नॉट श्योर, लाइक दिस ग्राफ एट बॉटम। ओके, अब आपने रूट पे जाना कैसे है ना, ये तो आपने कह दिया कि ए और बी, आप ए और बी पिक कर लोगे। तो अगला जो पॉइंट है मेथड का, अब इनका मिडिल पॉइंट लेते हैं हम, C। What is C? Middle point of A and B। ठीक है, लिख सकते हो C। तो अब डिपेंडिंग ऑन द A एंड B, मान लो आपका C है इस साइड, लेट्स से C is on this side, एक साइड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब रूट किसके बीच में है, C and B। C and B के। तो फिर आपने क्या करना है, A को डिस्कार्ड कर देना और C और B ले लो नए। अब C सिंबॉलिक हम क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट। तो लेफ्ट पहले A था, अब आपका B है, तो अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट आपका C हो जाएगा, राइट आपका B ही रहेगा। अब इसको रिपीट कर दो आप। अब रिपीट कैसे करना है, अब आपने छोटा कर दिया ना इंटरवल को, अब इनका मिडिल पॉइंट लो, वो मान लो यहाँ पे है, अब ये पॉइंट हो गया आपके दोनों, फिर उनका मिडिल पॉइंट लो, वो मान लो ये आ गया, तो इनका मिडिल पॉइंट लो ये आ गया, एंड सो ऑन। तो आफ्टर सम टाइम एक पॉइंट, एक C ऐसा होगा
जिस पे एफ ऑफ सी ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगा। अगर आप फंक्शन वैल्यू निकालोगे दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। उसका मीनिंग क्या होगा? सी इज रूट। ओके, तो ये आपका बाइसेक्शन मेथड है। तो आपने क्या करना है, मिडिल पॉइंट लिखना है इनका सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। तो अब आपके पास दो इंटरवल बन गए ना, एक ए टू सी और दूसरा इंटरवल क्या बन गया आपके पास, मिडिल पॉइंट सी टू बी। ठीक है, दो इंटरवल बन गए। ओके, तो एक सर इसमें मिडिल पॉइंट हाँ जी, मिडिल पॉइंट सी है। सर इसमें मिडिल पॉइंट वो नहीं होगा, आर नहीं होगा मतलब जिससे अभी सी होगा। तो रूट है एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ, ओके आपका बहुत जब मिडिल पॉइंट निकालते जाओगे रिपीट करोगे तो जो सी होंगे वो कुछ टाइम के बाद आर बन जाएंगे, वो रूट रूट ओके सर। पहले नहीं होगा ना। मान लो आपने एक A1 लिया, हम एग्जांपल करेंगे अभी, A1 लिया B2 लिया, तो मिडिल पॉइंट क्या आएगा 1.5। तो अगर यस सर। 1.5 रूट है आपका फिर तो ठीक है, ओके, एफसीजी आ जाएगा 1.5 पे। और जरूरी नहीं कि रूट आपका 1.5 हो, फिर आपको आगे बार बार लगाना पड़ेगा। तो ए और सी ओके के सर। दो इंटरवल बन गए। फिर आप कंडीशन चेक कर लो, इफ एफ ए एफ सी लेस देन 0। अब इसका मीनिंग क्या होगा? उसने साइन जो रूट के कारण उसका साइन चेंज हो ए और सी में इसका मीनिंग क्या है? आपका सी इस साइड है, सी इज हियर, ए पे नेगेटिव है सी पे पॉजिटिव है। तो फिर आप ना, अब सिंबॉलिक हम मैटलैब या मैं के वे में लिख रहा हूं, तो फिर आप क्या कर दोगे, जो बी था पहले उसको सी कर दोगे, एल्स आप ए को सी कर दोगे। मतलब सिंबॉलिकली क्या है, ए लेफ्ट पॉइंट है और बी राइट पॉइंट है। तो अगर रूट ए और सी के बीच में है तो लेफ्ट पॉइंट तो आपका ए ही रहेगा, और राइट पॉइंट जो पहले बी था अब क्या बन जाएगा, वो सी बन जाएगा। और अदरवाइज अगर सी आपका इस साइड है तो आप क्या कर दोगे, ए की जगह सी रख दोगे, है ना, ए की जगह सी आ जाएगा और बी आपका बी ही रहेगा। ओके, सो ये थोड़ा कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हो वही रहा है कि हम पास जा रहे हैं रूट के धीरे धीरे कर रूट के करके। पास जाना ना। ठीक है, आपने यानी कि तो वही बात होगी कि अगर ए और रिपीट अगर करते ए जाना उसको, मिडिल पॉइंट निकालो, हर बार दो इंटरवल मिलेंगे आपको, दो ही मिलेंगे। मिडिल पॉइंट निकाला आपने, मान लो मेरे पास मैंने 1 और 2 लिया, एक इंटरवल है, मिडिल पॉइंट क्या आ गया 1.5, तो दो इंटरवल, एक ये बन गया एक ये बन गया। अब नया इंटरवल आपने वो लेना है, अगर रूट इस साइड है तो आपने इंटरवल ये लेना है, और अगर रूट आपका इस साइड है तो आपने इंटरवल ये लेना है। अब उसका पता कैसे लगेगा? जिस साइड रूट होगा वैल्यू अपोजिट साइन की होंगी, यही तो हम कह रहे हैं ना। अगर ए और सी के बीच में रूट है तो एफ ए पॉजिटिव होगा तो एफ सी नेगेटिव होगा, अगर एफ ए नेगेटिव है तो एफ सी पॉजिटिव होगा। हाँ जी राघव। आवाज नहीं आ रही आपकी। So we repeat the procedure. Repeat the procedure. अब आपने रुकना कब है ना, क्योंकि अब रिपीट है तो यू कैन नॉट रिपीट दिस प्रोसीजर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, यू हैव टू स्टॉप। तो जो हमारे इटरेटिव मेथड होंगे इन सब में एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाएंगे हम, स्टॉपिंग कि व्हेन यू वांट टू स्टॉप। तो उसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं। सो आई एम सेइंग इट स्टॉपिंग क्राइटेरिया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, और ये सब में लिखेंगे। सो इसमें लिखोगे आप इटरेटिव मेथड्स में। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया कई सारे हो सकते हैं। आप क्या करो, मिडिल पॉइंट निकालते जाओ, है ना, उनको लेबल लगाते जाओ। पहला मिडिल पॉइंट C1, लेट्स से फर्स्ट मिडिल पॉइंट C1, फिर C2, फिर C3 एंड सो ऑन।
तो आप क्या करो, दो का डिफरेंस निकालते जाओ, एब्सोल्यूट एरर। तो सिंबॉलिक लिख रहा हूँ cn+1 माइनस cn, दो मिडिल पॉइंट का डिफरेंस अगर लेस देन एक नंबर है, बहुत ही स्मॉल है, इसको हम एप्सिलॉन से लिखेंगे, इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, टॉलरेंस। अब दो मिडिल पॉइंट का डिफरेंस निकालते जाओ, जब यानी कि ऑलमोस्ट जीरो बन, दो का डिफरेंस अब कुछ टाइम के बाद होगा, जब व्हेन यू नियर रूट, जो सी निकालोगे आप, वो दोनों सी ऑलमोस्ट सेम बन जाएंगे, ऑलमोस्ट सेम कह रहा हूं। तो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो या रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, अब ट्रू वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम जो नए वाली वैल्यू उसको ट्रू बोलते हैं, तो cn+1 ये कर सकते हो। और आप ये कर सकते हो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो उन मिडिल पॉइंट पे, अगर ये बहुत छोटी हो, अब सेवन से लिखते हैं स्मॉल, देन यू विल स्टॉप। दो सी का डिफरेंस निकालते जाओ, व्हेन दैट डिफरेंस इज स्मॉल यू कैन स्टॉप। ये 2C मतलब उनके मिड पॉइंट अभी की अभी बात कर रहे हो आप? एग्जांपल करता हूँ, फिर उसके बाद आप बोलो, ठीक है? मैं एग्जांपल से क्लियर होगा ये कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यूज बाइसेक्शन मेथड, सिंबॉलिक हम ज्यादा नहीं डिस्कस करते, जस्ट डू इट प्रैक्टिकली। यूज बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड रूट ऑफ 3x minus ex equals to 0 in interval 1 to 2, accurate within 10 power minus 2। ये जो टर्म लिखा है एक्यूरेट विद इन, ये एप्सिलॉन है आपका स्मॉल, कि इतनी एरर जब आपकी इससे छोटा हो जाए तब आप रुक जाओ। सिंबॉलिकली कहने का मीनिंग है कि आपने रूट निकालना है 1 और 2 के बीच में, जो fx है दैट इज 3x minus e power x, 1 और 2 में वैसे उसने दे ही दिया कि उसने a1 दे दिया और b2, एंड यू कैन चेक, आप इसमें फिट करो, f1 निकालो, f1 कितना आएगा 3 माइनस e, तो 3 बड़ा होता है, e कितना होता है 1.7, पॉजिटिव आएगा। अब f2 निकालो, 3 to 6 माइनस e स्क्वायर, ये नेगेटिव आएगा। तो हम ये कह देंगे रूट लाइज इन 1 2, और दो कंडीशन थी ना कि अब मेथड की कंडीशन क्या है कि 1 और 2 में अगर रूट है तो उसमें साइन चेंज होना चाहिए, वो हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस। आल्सो एफ इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों है, बेसिक फंक्शन है, 3x कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल x कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज कंटिन्यूअस, ओके। आल्सो f इज कंटिन्यूअस, सो यू कैन अप्लाई बाइसेक्शन। अब बाइसेक्शन अप्लाई कैसे करना है, मैं आप इटरेशन के नंबर लिख रहा हूँ, पहली इटरेशन मान लो, चलो ये किया मैंने। फर्स्ट में हमने क्या लिया, a इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू 2। अब आपने नंबर लगाना है तो लेबल लगा लो, इनको a1 b1 कह दो। तो मिडिल पॉइंट क्या आएगा इनका, 1.5, 1.5। ठीक है। अब 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर लिखा हुआ है आपने, 2 पे वैल्यू नेगेटिव है, आप 1.5 पे निकाल लो, फाइंड फंक्शन वैल्यू एट 1.5। सो 3 टाइम्स 1.5 माइनस e पावर 1.5, कैलकुलेटर से निकालना कितना आएगा ये। अब चेक, मैं साइन लिख देता हूँ, आप कर लेना चेक इसको, ये पॉजिटिव है। तो यस सर। a पे पॉजिटिव है, 1.5 पे पॉजिटिव है, b पे नेगेटिव है, तो रूट किन के बीच में होगा,
2 सर and 1.5. 2 1.5 and 1. के बीच में, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? सो रूट लाइज इन 1.5 and 2, ठीक है। तो एक इक्वेशन मैंने कर दिया, बाकी मैं टेबल में एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यू कैन आल्सो ड्रॉ ए टेबल जस्ट टू शो योर आंसर। यहाँ पे आप एक नंबर लिख लो, इटरेशन काउंट। पहला इटरेशन जैसे मैंने किया है 1, ए आपने लिया है 1, ठीक है जी। बी चाहे तो आप सी को बीच में भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, फिर वो इंटरवल लिखने में क्लियर रहेगा आपका। ए सी और बी, ये 1 बी 2 लिया और 1.5 आ गया। यहाँ पे आप साइन लिखते जाओ, एक साइन किसका लिखना है आपने, एक लिख लो एफ ए एफ सी का, कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और फिर एरर निकालते जाओ। एरर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cn+1 माइनस सी। तो पहला इटरेशन 1 और 2 लिया, मिडिल पॉइंट 1.5 आया, ठीक है। अब आप, मैंने पीछे लिखा था एफ ए पे वैल्यू पॉजिटिव है, सी पे भी पॉजिटिव है, तो एफ ए और एफ सी का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये साइन पॉजिटिव आ गया तो रूट आपका सी और बी के बीच में है, और अगर ये साइन नेगेटिव आ जाता तो रूट आपका ए और सी के बीच में है। बस ये चीज करनी है आपने, नेचुरल है ना। अगर ए और सी एफ ए एफ सी नेगेटिव है तो रूट इस साइड है। अब पॉजिटिव आ गया तो इसका मीनिंग क्या है, रूट आपका सेकंड इटरेशन में ए मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूँ लेफ्ट पॉइंट, तो इंटरवल आपका बन गया 1.5 से लेके 2 तक, ये इंटरवल बन गया। तो लेफ्ट पॉइंट उसका बन जाएगा 1.5, राइट पॉइंट 2 ही रहेगा, इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल लो। तो यहाँ साइन लिख दो। अब ये साइन नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आने का मीनिंग है रूट आपका ए और सी के बीच में है, तो बी की जगह सी आ जाएगा यहाँ पे। सर ये साइन सेकंड केस में साइन Negative का कैसे बताना, है? नेगेटिव कैसे है? क्या सर सेकंड साइन केस में नेगेटिव, नेगेटिव कैसे है सर? आप वैल्यू निकाल लो 1.75 पे, फंक्शन के फार्मूले में फिट कर दो ना। 1.5 पे पॉजिटिव आ रहा है, आप 1.75 पे निकाल लेना वैल्यू उसकी, उस पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे 1.75 पे नेगेटिव आएगा, तो इनके बीच में है ये, ठीक है। वो वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी आपको। 3x माइनस ई पावर x में x को फिट कर दो 1.75, कर लोगे 3x, जी सर। ठीक है। एक इटरेशन कर दिया, बाकी तो फिर रिपीट करना है ना, इटरेटिव है तो सेम चीज को रिपीट करते हैं ना आप अपने आगे। तो अगले में जो इनका मिडिल पॉइंट लिख दो, वो कितना आएगा 1.625। तो ये जो साइन है ये फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या लिखूं चौथे में मैं, इसका मीनिंग रूट ए और सी के बीच में ही है, तो ए ही रहेगा, बी की जगह यहाँ पे सी आ जाएगा 1.625। इनका मिडिल पॉइंट निकाल लो, कितना आएगा इनका 1.5625। फिर फिफ्थ इटरेशन, फिर ये 1.5 और 1 लेफ्ट साइड ही जा रहा है रूट, ये लेफ्ट साइड ए के पास जा रहा है ये, तो इनका मिडिल पॉइंट आएगा 1.5313। सिक्स इटरेशन में करोगे तो 1.5 और 1.5313 के बीच में है, ये वैल्यू है 1.5156, ठीक है। और एक बस 7 पे रुक रहा हूँ, 7 पे 1.5 और 1.5156, इनका मिडिल पॉइंट आ जाएगा ये 5078, और ये वैल्यू आ जाती है नेगेटिव। अब 5078 है? हाँ जी, सारी नेगेटिव आ रही है। 5078 है? 5078। तो अब जी मैं ठीक 7 पे रुक रहा हूँ। अब एरर कैसे लिखना है आपने, ठीक है। एरर आपने क्या लिखना है, 2 कंजक्टिव सी को माइनस करते जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट से शुरू कर लो, एक स्पेस छोड़ दो। तो 1.75
पहली एरर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1.75 माइनस 1.5 कितना आएगा ये? बोल दो 0.25। अगले में एरर लिखना है आपने इन दोनों दो का माइनस, वैसे इसका आधा ही हो जाएगा, आप चेक कर लेना। इंटरवल आधा आधा होता है, इसका आधा कर दो पिछले वाले का, फिर अगले में फिर उसका आधा कर दो, फिर इसका आधा कर दो, फिर इसका आधा कर दो, और लास्ट में ये आ जाएगा 0.078। हमने 0.1625 माइनस 1.5 किया था ना? हाँ हाँ, ये दो माइनस करते गए सी, आप ये सी ले दो, दो को माइनस करते जाओ, बाकी माइनस करने की जरूरत भी नहीं है, आधे आधे होते जा रहे हैं ना, आप इंटरवल को आधा नहीं करते मतलब हो तो जो डिफरेंस भी होता है वो मतलब 1. ये डिफरेंस प्रीवियस का आधा आधा होता जाएगा, नहीं चाहे आप दो को माइनस करते जाओ, दो इसमें इसको माइनस, इसमें इसको माइनस, इसमें इसको माइनस, ये लिखते जाओ एरर, इसको एरर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो रुकना, अब देखो क्वेश्चन में जो कंडीशन थी वो कहता कि इसका एक्यूरेट विद इन का मीनिंग है कि जो आपका एरर है वो 10⁻2 से जब छोटा हो जाए तब आपने रुकना है। तो 10⁻2 कितना होगा? 10⁻2 0.01। हाँ, तो ये देखो 0.01 से छोटा है तो रुक गए हम, बाकी सारे बड़े हैं, 0.01 ये बड़ा ही है ना उससे, 1.5 अब देख ये से बड़ा है। तो जब आपका उससे छोटा हो जाए देन यू स्टॉप। तो जो फाइनल आंसर क्या बनेगा? ये वाला आंसर। तो फाइनली हम लिखेंगे रूट, कंडीशन ली है रूट विद गिवन कंडीशन या गिवन एक्यूरेसी is 1.5078. So you can say this is my root, ठीक है जी। अब एल्गो में बात दोबारा जाते हैं। तो जो मैंने एरर लिखा था, जो अपसेलन है ये गिवन होगा आपको, इसको टॉलरेंस भी बोलते हैं, एक्यूरेसी जो आपको दे रखा है। Cn+1 माइनस Cn सिंबॉलिक है दैट यू फाइंड डिफरेंस ऑफ टू कंजेक्टिव सीज, दो का माइनस करते जाओ आप, ठीक है। और उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो बहुत छोटा बनता जाएगा। आप ये भी यूज कर सकते हो क्राइटेरिया। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है जो आपको कह रखा हो क्वेश्चन में, वो आपने यूज करना है, ठीक है। तो फंक्शन में दो चीजें चेक करनी है, एक अपना साइन चेंज करे, ठीक है, ए और बी के दो पॉइंट लोकेट करने हैं। बाई हैंड जब आपने करना है आप उसमें 0 1 2 3 फिट करते जाओ, थोड़ा नेगेटिव साइन में, जिसमें वो साइन चेंज करे, है ना, +2 माइनस या -2 प्लस, वो पॉइंट नोट कर लो दो, और कंटिन्यूटी हो वो चेक कर लेनी है आपने। फिर आपने उनका मिडिल पॉइंट लिखना है। तो जैसे इस एग्जांपल में था आपके पास, इस पे वैल्यू पॉजिटिव थी, इस पे नेगेटिव थी, तो इस पे वैल्यू जो आ गया पॉजिटिव आ गया, तो रूट क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा, 1.5 और 2 के बीच में। तो टेबल मैंने, आप टेबल लिखो चाहे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखते जाओ, तो सिंबॉलिक है ये, लेफ्ट पॉइंट को हम ए से लिखेंगे, राइट पॉइंट को मैंने बी से लिखा है, और उनका जो मिडल होगा वो सी होगा। तो जैसे फर्स्ट इंटरवल ये आ गया तो मेरा ए 1.5 बन गया, बी मेरा 2 ही रहा, ठीक है जी। फिर उनका मिडिल पॉइंट निकाला, वो 1.75 आया, ठीक है। फिर 1.5 और इनका 1.75 का मिडिल पॉइंट निकाला, 1.625। इसमें आप साइन देख लो, वो एफ एफ सी नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब अपोजिट साइन का, तो ए और सी के बीच में रूट होगा, यानी कि ए को आपने ए ही रखना है और सी को यहाँ पे बी की जगह फिट कर देना है, ठीक है। फिर मिडिल पॉइंट निकालना है इन दोनों का, उसको रिपीट करते रहना है, एंड फाइंड एरर एट ईच स्टेप by subtracting two consecutive C's, ओके। जब एरर आपका गिवन जो भी नंबर दे दे क्वेश्चन में उसमें उससे छोटा हो जाए देन यू विल स्टॉप, ओके। सर ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी कि वो जो टॉलरेंस है वो ये एब्सोल्यूट एरर से कम है या फिर रिलेटिव से, या फिर वो फंक्शन की वैल्यू? क्लियरली आपको दे रखा होगा कि आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है। नॉर्मली एब्सोल्यूट से ही कर लेते हैं, इसमें चल जाता है, राइट सर। ठीक है। दैट अगर रिलेटिव का होगा दैट विल बी स्पेसिफाइड,
और कई बार हम परसेंटेज लिखेंगे तो परसेंटेज अगर लिखा होगा फिर क्या होगा, वो कह रहे हैं कि वो रिलेटिव की परसेंटेज रिलेटिव एरर ही है वो, फिर आपका ये वाला यूज किया है, परसेंटेज है तो आपने 100 से उसको मल्टीप्लाई। वी विल टेक डिफरेंट एग्जांपल टाइम टू टाइम, ओके, डोंट वरी। यस कभी एब्सोल्यूट का ले लेंगे, कभी रिलेटिव का, कभी परसेंटेज का। ठीक Okay, है so this is a quite simple method based on, in short answer we ask, so what is the base of this method? So this is based on intermediate value property of number. This property says that between positive and negative or negative and positive, there is always a zero if a function is continuous. Okay, so we are applying this information to find root. And in next lecture we will talk about its convergence, जो मैथमेटिकली है कि हमने तो प्रैक्टिकली तो हमने कह दिया ना कि ये रूट को अप्रोच कर रहे हो आप, but mathematically we will show that the middle points that you are writing middle point, different middle point आपने लिखे हैं, first middle point 1.5, फिर ये, so all these middle points they are approaching near root उसको हम बोलते हैं convergence, ये अप्रोच करना है ना। Okay, so I'll stop. Any doubt? नो सर Okay, so नो सर। चलो फिर नेक्स्ट में एक एग्जांपल और ले लेंगे, ठीक है, then we will talk about convergence. सर एक बार ये एक स्लाइड पीछे करेंगे जहाँ पे अपन ने वो 3 इक्वेशन लिखी थी कि एक और स्लाइड पीछे। ये हाँ जी ये वाली इसमें हम तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे ना कि एफ डज नॉट चेंज साइन। 3 कंडीशंस ये हो गए ना कि एक तो कंटीन्यूअस होना चाहिए, एक साइन चेंज करना चाहिए साइन बस, चेंज और करेगा, एक कंडीशन लास्ट वाली ये करी थी कि डज नॉट कभी चेंज कभी उसके साइन। अंदर ही आ रहा है ना, साइन चेंज कर रहा है फंक्शन अपना। हाँ, अगर साइन ठीक चेंज नहीं करेगा तो ये मेथड नहीं लगेगा बाइसेक्शन, अगले मेथड और भी हम पढ़ेंगे वो लगेंगे, उसमें लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक So है this is just a startup. ओके सर।